Hi friends, welcome to Shelley's Langlet Lab. I am Dr. Shelley and I have come with another poem by Philip Larkin entitled The Trees. In this video, we are going to discuss the text of the poem in both the languages Hindi and English, the figure of speech, the central idea, and the rhyme structure and tone of the poem. Here is the text of the poem, The Trees. It's a very small poem, just of 3 stanzas. और ये जो पोएम थी ये पब्लिश हुई थी हाई विंडोज़ नाम के कलेक्शन में, जो कि लाकिन का लास्ट पोइट्री कलेक्शन था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1974. We are not going to talk about Philip Larkin in this video because I have already made a video on that. अगर आप फिलिप लार्किन के बैकग्राउंड, उनकी थीम और उनके वर्क्स और उनके बारे में जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको जानना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माई अदर वीडियो दैट इज़ नेक्स्ट प्लीज़ बाय फिलिप लार्किन. तो उस वीडियो में ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं. अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगी एंड यू कैन go to that video for Philip Larkin's background and other things. Now coming to the poem. The trees are coming into leaf, like something almost being said. The recent buds relax and spread. Their greenness is a kind of grief. The poem is set in spring season. And he says, the trees are coming into leaf. New leaves are coming on the trees. New flowers have started to bloom, like something almost being said. He says that the new leaves have started to bloom as if someone is about to say something. The word is to be spoken and the lips have almost opened to say something. In the same way, the leaves are also not fully opened, but they are about to open. They are about to bloom. The recent buds relax and spread. Their greenness is a kind of grief. And then he says that the recent leaves, the recent buds, the recent flowers, they are trying to relax in the sun after winters, and they are trying to spread their legs, their arms, like humans. But their greenness is a kind of grief to the poet. Generally, people feel very happy when they say greenery around them, and it makes them very elated. But here the poet is being very sad. It makes him very grieved. तो ये जो स्टेंजा है ये स्प्रिंग सीजन में सेट किया गया है. बसंत ऋतु की बात पोएट यहाँ पे कर रहा है और वो कहते हैं कि जो पेड़ हैं उन पे नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, जैसे कि कोई कुछ कहने ही वाला है. तो पत्तियाँ पूरी तरह से आई भी नहीं हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, पर उन्होंने अभी कहा नहीं है. तो जो लीव्स हैं वो भी क्या हैं, हाफ ओपन्ड हैं, पूरी तरह से खुली नहीं है. द रीसेंट बर्ड्स रिलैक्स एंड स्प्रेड. और जो नई नई पत्तियाँ, नई नई कलियाँ हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने आप को रिलैक्स कर रही हैं धूप में, जैसे ह्यूमंस करते हैं. जैसे हम लोग धूप में एकदम रिलैक्स करना चाहते हैं, एकदम वी स्प्रेड अवर आर्म्स एंड लेग्स एंड वी बिकम वेरी कंफर्टेबल इन द सन. तो उसी तरह से धूप में जो रीसेंट बर्ड्स हैं, जो नई नई पत्तियां हैं, न्यूली बॉर्न बर्ड्स हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और स्प्रेड कर रहे हैं. देयर ग्रीननेस इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीफ. एंड व्हाट पोएट फील्स हियर, वो बहुत ही सैड हो जाता है उनकी ग्रीननेस देख के. जो ग्रीननेस है ये हमेशा यूथ से एसोसिएट की जाती है. व्हेन यू से समथिंग इज़ ग्रीन, समथिंग इज़ फ्रेश, both the things are same. So here he says their greenness is a kind of grief. The mood changes because we know about Philip Larkin that he is a pessimistic poet. Larkin was a keen observer of nature. और उनके जो देखने का नज़रिया था नेचर को वो बिल्कुल ही अलग था. You can completely feel it here. He gives a very unconventional description of spring season. The description is very real, but the way he relates himself with this kind of a scene is very different. He does not feel happy, but he is sad by looking at their greenness, at their youth. Then he says, is it that they are born again and we grow old? No, they die too. The yearly trick of looking new is written down in rings of grain. And then he says,
Is my sadness because they are born again, they are in their youth, and it is we who grow old, because we grow old and they are getting young every year? But then he pauses and he says, no, they die too. They also die. Okay, so in the previous line, he says the trees are coming into leaf, like something almost being said. The recent buds relax and spread. Their greenness is a kind of grief. Is it that they are born again and we grow old? तो वो कह रहा है कि क्या ये इसलिए है, क्या ये सैडनेस जो मेरे मन में है वो इसलिए है क्योंकि वो तो दोबारा पैदा हो रहे हैं जो पेड़ हैं, पर हम वही पुराने, हम वही बिल्कुल बुढ़े होते जा रहे हैं. देन ही करेक्ट्स हिमसेल्फ, ही सेज नो, they die too, they also die. How? He says their yearly trick of looking new is written down in rings of grain, and he says they have a yearly trick of looking new. There is a comparison between the cycle of birth and death between trees and humans. Like humans, they also die, the poet says. जैसे ह्यूमंस हैं वैसे ही पेड़ भी मरते हैं, बट वो कब मरते हैं? वो हर साल मरते हैं और हर साल जन्म लेते हैं. एंड देयर ईयरली ट्रिक ऑफ लुकिंग न्यू इज़ रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रेन, कि वो भले ही अपने आप को हर साल बिल्कुल नया और यूथफुल दिखाते हैं, पर उनकी जो एज है वो कहाँ पता चलती है? व्हेन वी लुक एट इट्स ट्रंक. जब भी किसी पेड़ की एज हमें देखनी होती है तो उसका जो ट्रंक होता है, उसका जो तना होता है, नीचे से जब उसे काटा जाता है तो उसमें कुछ तरह के ऐसे रिंग्स बने होते हैं. तो इससे काउंट करके हम किसी भी ट्री की एज का पता लगा सकते हैं. So we can tell the age of a tree by looking at the rings of grain in its trunk. Okay, and it is also called dendrochronology. Then he says, yet still the unresting castles thresh in full grown thickness every May. Last year is dead, they seem to say, begin afresh, afresh, afresh. And then he says that, and yet still the unresting castles, by just putting these two words, unresting castles, the poet here says that the trees stand like castles. Castles होते हैं किले, और unresting मतलब without any rest, बिना किसी रेस्ट के. So just by using these two words, यही दो वर्ड्स यूज़ करके उसने एक इमेजरी हमारे माइंड में प्रेजेंट की है कि पेड़ कभी रेस्ट नहीं करते, पेड़ कभी भी सोते नहीं हैं, कभी आराम नहीं करते. ऐसा नहीं कि खड़े खड़े थक गए तो बैठ गए. द सेम वे ट्रीज ऑल्सो स्टैंड देयर एंड लाइक द हाउसेज, लाइक अ कासल, दे गिव अस शेल्टर. तो जैसे किले हमें शेल्टर देते हैं, उसी तरह से पेड़ भी हमें शेल्टर देते हैं. एंड दे स्टैंड देयर विदाउट एनी रेस्ट एंड इन फुल ग्रोन थिकनेस एवरी मे. एंड व्हेन दीज कासल्स आर थ्रेश्ड, और जब इन पेड़ों को क्या किया जाता है? थ्रेश किया जाता है. जब पेड़ों को या जो अनाज होता है, जब हम उसको थ्रेश करते हैं, थ्रेश करना होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं जब अनाज को भूसे से हम अलग करते हैं और उसके ग्रेन्स हम निकाल लेते हैं. ओके, सो थ्रेशिंग इज़ अ प्रोसेस which is used to separate grains from the rest of the tree or sapling, whatever it is. And then he says that then the seed is also put in the soil, and in the next May we see another tree grown and it's full bloom, so every May the trees come in their full grown thickness. They become very thick with leaves and fruits. And last year is dead, they seem to say, begin afresh, afresh, afresh. And then what happens? The trees seem to say, ऐसा लगता है मानो trees हमसे क्या कह रहे हैं? That last year is dead, begin afresh, afresh, afresh. And he says that ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कह रहे हैं कि जो पुराना साल था वो क्या है? जा चुका है, और हमें दोबारा से नई शुरुआत करनी चाहिए. So the message here is that whatever happens in our life, we should forget the past and begin afresh every year. So the trees say to the poet that you need not be sad that you are growing old. You just have to forget your past bad things, and you have to begin afresh every year like us. So our age may be in 2 digits, but we can look young and feel young if we follow this philosophy of life. If we learn from the trees and their cycle of renewing themselves only by starting afresh every year. So the poem actually ends on a very hopeful and moralizing tone. Let us revise the poem once again. Now I want you to understand every idea, and I want you to
understand the logic that Philip Larkin has put in his poem. The trees are coming into leaf like something almost being said. The recent buds relax and spread. Their greenness is a kind of grief. The trees are blooming in spring season as if something is almost being said by someone. The recent buds are trying to relax and spread in the sun, but when I look at these green trees, I feel very sad. Is it that they are born again and we grow old? No, they die too. Their yearly trick of looking new is written down in rings of grain. तो क्या ये इसलिए है कि वो जो ट्रीज़ हैं वो दोबारा से पैदा होते हैं और सिर्फ हम ही हैं जो सिर्फ बूढ़े होते जा रहे हैं? देन पोएट रिप्लाइज, नो, ऐसा नहीं होता है. नो, दे डाई टू, कि वो भी मरते हैं. और ये जो उनकी नया दिखने की जो ट्रिक है वो कहाँ छुपी हुई है? जब हम उनके ट्रंक में देखते हैं कि वो कितने साल पुराने हो चुके हैं. Yet still the unresting castles thresh in full-grown thickness every May. Last year is dead, they seem to say, begin afresh, afresh, afresh. And in every May, they stand like unresting castles and वो बिल्कुल ऐसे किलों की तरह खड़े रहते हैं जो कभी रेस्ट नहीं करते. एंड दे कम इन फुल ब्लूम. और मई में कैसे हो जाते हैं? पेड़ बिल्कुल अपने फुल ब्लूम में आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं उन पे या फ्रूट्स आ जाते हैं. ठीक है. एंड दे सीम टू से, और ऐसा लगता है जैसे वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि जो पुराना साल है वो क्या है, ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका है. एंड वी हैव टू बिगिन अफ्रेश. सो अगर ह्यूमंस भी यंग दिखना चाहते हैं पेड़ों की तरह, तो उन्हें क्या करना होगा? हर साल एक नई शुरुआत करनी होगी. नाउ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. वैसे तो ये मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर दिया इससे पहले, बट इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट द पोएम, और इफ़ यू वांट टू have an idea of the poem in certain words, you can take a screenshot of this. The poem speculates on the ideas of mortality, death, renewal. जो फिलिप लार्किन की पोएम्स हैं उनमें ज़्यादातर इसी तरह की थीम्स डिस्कस होती हैं, मोर्टैलिटी, डेथ और रिन्यूअल. और यही सेम चीज़ इस पोएम में भी है. ऑल्सो इट गिव्स द मैसेज ऑफ स्टार्टिंग लाइफ अफ्रेश वाइल फॉरगेटिंग द बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट. हमें अपने पुराने एक्सपीरियंसेस छोड़ करके अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए. रीसेंट बर्ड्स, दे सिम्बलाइज न्यू बिगिनिंग्स, रिन्यूअल एंड स्टार्ट. और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि दोनों के साइकिल का जो बर्थ और डेथ की साइकिल है, ह्यूमंस की और ट्रीज़ की. और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो ह्यूमन लाइफ और ट्रीज़ की जो लाइफ है उन दोनों का कंपैरिजन किया है कि किस तरह से दोनों ही बर्थ और डेथ की साइकिल से गुजरते हैं. ह्यूमंस सिर्फ एक बार गुजरते हैं, पर ट्रीज़ क्या करते हैं, वो हर साल उस चीज़ से गुजरते हैं. पहले जो ट्री होता है वो अपने बिल्कुल बिगिनिंग में होता है, स्प्रिंग सीज़न में नए नए पौधे उगते हैं. और फिर उसके बाद स्प्रिंग के बाद समर सीज़न आता है, तो समर में वो अपने फुल ब्लूम में आ जाते हैं. ठीक है, एकदम अपनी यूथ में आ जाते हैं. और फिर ऑटम आता है, ऑटम में उनके पत्ते एकदम येलो हो जाते हैं और झड़ जाते हैं. देन इन विंटर दे टोटली शेड देयर लीव्स. विंटर में बिल्कुल ही सारी की सारी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, उनकी गिर जाती हैं एंड दे काइंड ऑफ डाई. देन अगेन द सेम थिंग हैपन्स इन स्प्रिंग सीजन, समर, देन ऑटम एंड देन विंटर. तो उसी तरह की चीज़ हमारी ह्यूमंस की लाइफ में भी होती है. पर ह्यूमंस की लाइफ में क्या होती है कि एक ही बार वो चीज़ होती है कि बर्थ होती है, हमारी यूथ आती है, then we grow old and then we die. So the central idea of the poem is death comes to each one of us, but we need to keep up with this life and prosper. We have to begin afresh and we should live our present and thrive like trees even if death is certain. तो भले ही हमें पता है कि डेथ हमारी होनी ही है, पर हमें हमेशा अपने प्रेजेंट को लेकर के चलना चाहिए और उन पेड़ों की तरह ही थ्राइव करना चाहिए, खूब फलना फूलना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं, एकदम फ्रेश वे में, जैसे कि ट्रीज़ जीते हैं, बाय फॉरगेटिंग देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्टार्टिंग अफ्रेश अफ्रेश अफ्रेश. नाउ द फिगर ऑफ स्पीच दैट आई यूज्ड इन द पोएम. फर्स्ट इज सिमिली. सिमिली में हमेशा दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और लाइक और एज जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं. तो यहाँ पे जो लाइक यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है फर्स्ट 2 लाइन्स में. द ट्रीज आर कमिंग इन टू लीव लाइक समथिंग ऑलमोस्ट बींग सेड. लाइक तो जैसे कोई कुछ कहना चाहता है, और जैसे कि ट्रीज़ धीरे धीरे अपनी लीव्स को क्या कर रही हैं, फैलने दे रही हैं. तो वो दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया है. देन देयर इज़ मेटाफर इन द नेक्स्ट लाइन. येट स्टिल द अनरेस्टिंग कासल्स थ्रेश. तो जो कासल्स हैं और
ट्रीज़ हैं उनके बीच में कंपैरिजन है, पर यहाँ पर क्या है, कोई भी लाइक या एज इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे मेटाफर है. देन देयर इज़ रेटोरिकल क्वेश्चन. रेटोरिकल क्वेश्चन इज़ द लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ actually used by the poet to create some effect. When the poet asks a question and then answers it himself, तो poet खुद ही पहले क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और पेड़ जो है वो एकदम दोबारा से बॉर्न हो रहे हैं. फिर वो खुद को ही आंसर करता है, नो दे डाई टू. ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन. इट इज़ ओनली यूज टू क्रिएट सम गुड इफेक्ट. थोड़ा पोएम को एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए इसे यूज़ किया जाता है, और वही फिलिप लार्किन ने किया है. देन पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन को हम मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं, जिसमें जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं उनको हम किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं. जैसे द रीसेंट बर्ड्स रिलैक्स एंड स्प्रेड, कि जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं. बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और दे कैन स्प्रेड देयर लेग्स एंड आर्म्स, बट ये क्वालिटी यहाँ किस पे अप्लाई की है, बर्ड्स के ऊपर जो नई नई कलियाँ हैं. तो यहाँ पे भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार है. दे आर बॉर्न अगेन एंड वी ग्रो ओल्ड, नो दे डाई टू. तो बेसिकली बर्थ और डेथ ये हम पेड़ों के लिए यूज़ नहीं करते हैं. वी से ग्रो एंड द ट्री हैज़ टेकन बर्थ, हम ये नहीं बोलते हैं. तो बर्थ और डेथ ये भी क्या है, ह्यूमंस की एक क्वालिटी कह सकते हैं, या ह्यूमन लाइफ की स्टेजेस हैं. तो वो क्वालिटी यहाँ अप्लाई की गई है ट्रीज़ के ऊपर. तो यहाँ पर भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है. लास्ट ईयर इज़ डेड दे सीम टू से, तो ऐसा लग रहा है मानो पेड़ कह रहे हैं, तो कहते बेसिकली ह्यूमंस हैं अगेन. तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है. देन द राइम स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ द पोएम. ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम्स में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आता है, तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में तो आप बताते हैं कि कहाँ से ये पोएम ली गई है, फ्रॉम वेयर द पोएम इज़ टेकन एंड हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम, किसने लिखी है. एंड देन ये जो चीज़ें हैं राइम स्ट्रक्चर एंड टोन से रिलेटेड, ये आपको मेंशन करनी होती क्रिटिकल कमेंट्स में. सो फर्स्ट वी आर कमिंग ऑन द राइम स्कीम. राइम स्कीम इज़ ABBA CDDC EFFE एंड द पोएम इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर. यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हम किसी पोएम की राइम स्कीम देखते हैं तो हम उसका जो एंड वर्ड है वो देखते हैं. वी लुक एट द लास्ट वर्ड दैट इज़ देयर इन द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन. तो लीफ जो है उसको हम ए दे देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड है. देन देयर इज़ सेड, तो सेड और लीफ दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सेड को हम बी दे देते हैं. देन वी से स्प्रेड, स्प्रेड और सेड दोनों की राइम थोड़ा थोड़ा मैच करती है, तो हम इसे एक बी दे देते हैं. एंड ग्रीफ और लीफ मैच कर रहे हैं तो हम इसे वापस ए दे देते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आगे की भी राइम स्कीम बना दी जाती है. इसको मैं एक अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझा दूंगी. बट फॉर दिस पोएम यू नीड टू रिमेंबर दैट द राइम स्कीम ऑफ दिस इज ABBA CDDC EFFE. Then the structure of the poem, it's a lyric and it is written in 3 quatrains. Quatrain होता है 4 लाइन का स्टेंजा, और ये पोएम है ये 3 स्टेंजाज में लिखी गई है, और जिसमें कि 4 लाइन हर स्टेंजा में है. द टोन इज़ वेरी मॉरलिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड लेटर ऑप्टिमिस्टिक, मेलैंकोलिक, इंस्पिरेशनल, थॉटफुल एंड होपफुल. मॉरलिस्टिक मतलब होता है जहाँ पे कोई मॉरल छुपा हुआ है एंड में. ठीक है, तो लास्ट में ट्रीज़ हमें सिखाते हैं कि अपनी लाइफ को फिर से फ्रेश स्टार्ट दो. देन पेसिमिस्टिक, पहले तो वो निराशावादी होता है पोएट, और फिर बाद में ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, आशावादी हो जाता है, ही बिकम्स वेरी होपफुल. एंड द थॉट इज़ ऑल्सो वेरी thoughtful, very inspirational. The poet wants to inspire us through trees. The tone is sometimes melancholic. कभी पोएट क्या होता है बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाता है. ठीक है, बट इन द एंड ही becomes hopeful for that. So thank you so much for watching this video so far. If you like the video, please like, share and subscribe, and also share it with your friends. If you have any suggestions regarding the video, please comment down below. Thank you so much.